Good morning, sir. Good How morning, are Very you, good sir. sir? morning, very good morning, my dear student. कैसे हैं आप सभी लोग? How are you? Fine, sir. Sir, fine. How are you, Fine, sir? sir. Fine, thank you. Good morning, sir. Very good morning, very good morning. Good morning, sir. Good morning, beta. Very good morning. And I'm just providing you the link for your attendance. Got it? So fill this attendance. Okay. ओम, बेटा आप पढ़ाई नहीं करते हो क्या? क्लास जब होता है तो आप क्या करते हैं बेटा? चलिए, yesterday I have given you this homework. बच्चों, aware of this homework? Yes, sir. This is 13C. How many of you have solved this? Good morning, sir. Very, very good morning, all of you. I just want to see your name now. Wait a minute. And let give 2 more minutes to all the students to join because they are just joining. Trisha has done their attendance. Good, good, good. Anya, Ananya, Sir, I Ayush, submitted Ars. attendance. Tell me what you want to say, please, beta. Sir, I have submitted attendance. Good, good. You can write only done. This is okay for me. Okay, I am sharing Sir, again attendance link. yes, sir. Please. Sir, done. Done. Very good. Okay, do it fast. Don't take more time. Moving forward. सर 13B का 7 नंबर फिर से बता दीजिए ना. जरूर बता देंगे, कोई इशू नहीं है. ऑफ कोर्स मैं यही इसीलिए तो हूँ यहाँ पे बेटा, बताता हूँ. नाउ सी, म्यूट कीजिए बेटा आप लोग. 13B का क्वेश्चन नंबर 7 आप बोल रहे हैं बेटा, इसमें 5 से तो ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं है. सर 13C का. ओके ओके ओके, 13C का 7. बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ मैं. अच्छा, कौन अनम्यूट किए हुए है बेटा? हु इज देयर? सर प्रिंस कुमार. और अभी बीच में किसकी आवाज आई? Sir, attendance link. Yes, here is the attendance link, but try to join early so that you need not to ask for attendance link. Now see,
चलिए क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 says, given two triangles are ABC and XYZ. So first draw these two triangles, ABC and XYZ. Here I have drawn that question, ABC and XYZ, clear? And these two are congruent, means corresponding angle of B will be equal to corresponding angle of Y. Yes, sir. So angle B is 35 degree, then Y will also be 35 degree. Angle A, its corresponding angle is X, 110 degree. I think you have given only two angles. So third angle Yes, sir. is, इसमें AB AC का एंगल दिया हुआ है. yes. So third angle दो. can also be find out by subtracting 180 degree minus the sum of the two angles. Yes, sir. So these three angles will be found out, and the corresponding angle, what is required to find, you can use this property, corresponding angle, by CPCT. You can find its value. Clear? बोलो बच्चों. Yes, sir. चलिए, here this question was question number 7. And is there any doubt in this exercise? No, sir. So we can move forward. We have a new topic, that is right angle hypotenuse side. This is also one of the important criteria of congruency. Yes, sir. So before moving to next exercise, we should know the property of RHS. See, suppose the two right triangle are given. Suppose one right triangle is ABC and the second right triangle is PQR. If the hypotenuse are equal and one of the side is also equal. Okay, I am sharing again. Let's see. Now see, we are studying the properties of RHS, criteria of congruency. सर इसमें राइट एंगल दो का इक्वल होना चाहिए, हाइपोटेनियस इसका इक्वल होना चाहिए और या बेस इक्वल होना चाहिए. नहीं बेटा, बेस नहीं, कोई भी साइड. तो यहाँ हमने क्या किया, BC को किसके बराबर बताया है, PQ के बराबर. और अब हमें नाम देना है. तो नाम देने के लिए हमेशा याद करो कि आपको क्या करना है, एक साइड से चलना है. पहले हम राइट एंगल से, सर इसका नेमिंग ऐसे होगा ABC और RQP. नहीं, मैं जो नाम एक बार अपने साइड से एक नाम दे देता हूं. मैं नाम देता हूं BCA. अब बताइए दूसरे ट्रायंगल का नेमिंग क्या होगा. QRP बिल्कुल गलत है. देखिए यहाँ पहले हम राइट एंगल B लिए. देखिए यहाँ पहले हम राइट एंगल B लिए, B से इक्वल साइड की तरफ चले. तो Q से हम क्या किए, इक्वल साइड की तरफ चले. फिर हमको हाइपोटेनियस की तरफ जाना है, तो हम क्या करेंगे, ये चलेंगे. तो Q से क्या होगा, Q के बाद P और P के बाद R स्टॉप को पकड़ना होगा. तो ट्रायंगल QPR ये नेम हो जाएगा. समझ में आया? यस सर. चलिए अब नाम बताइए. अब मैं जो हूँ दूसरा नाम इसका देता हूँ, नेम हो गया CBA. अब क्या नाम होगा बेटा, आप लोग बताओ. अगर पहला नाम हमने CBA दिया तो PQR सर. बिल्कुल सही है, PQR चलेगा, क्योंकि C से हम इक्वल साइड से राइट एंगल की तरफ बढ़े और यहाँ भी इक्वल साइड है दिया हुआ और उससे हम राइट एंगल की तरफ बढ़े. जब दो साइड मिल गया सामने से तो तीसरा नाम बस दे देना है, PQR इज द राइट आंसर. तो आपको ये राइट हैंड साइड क्राइटेरिया का पता चला. मुझे एक बच्चा राइट हैंड साइड क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करके बताएगा कि आखिर ये क्राइटेरिया में कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे प्रूव होगा. वेट, कौन बोलना चाहता है, नाम बताइए बेटा, बोलिए. हु इज रेडी टू आंसर?
सर नाम बताइए। शुभम, यस सर। प्लीज बेटा ऑन कीजिए कैमरा और बताइए। आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू, प्लीज। शुभम प्रकाश, यस सर। एक मिनट बेटा, सर इसमें वेट वेट वेट। शुभम, वेरी गुड राइट मॉर्निंग, हैंड, कैसे हो आप? इसमें सर अच्छे हैं। हाँ, लुकिंग गुड। गुड। चलिए बेटा बताइए आरएचएस को। सर इसमें राइट एंगल इक्वल होना चाहिए, दोनों ट्रायंगल में कोई एक राइट एंगल, और कोई राइट एंगल को जो हाइपोटेनियस होता है वो इक्वल होना चाहिए, गुड गुड गुड, और कोई भी साइड इक्वल होना चाहिए इसमें। करेक्ट। कोई भी साइड एक और इक्वल होना चाहिए हाइपोटेन्यूज के अलावा। तो शुभम, दिस इज द गिफ्ट फॉर यू, वेट अ मिनट। शुभम प्रकाश, here is the name is Shubham Prakash, यस सर। class 7B, and it is a very good thing that you have answered very properly. Very good. So take a screenshot of it, and this can be your status, WhatsApp status. Okay. चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो शुभम ने बहुत ही अच्छा आंसर किया, आरएचएस क्राइटेरिया को एक्सप्लेन किया कि if two right angle triangle are there, then there will be a right angle. This is true. The other one side will be there hypotenuse, and one more side, if the corresponding two triangles have equal, then you can say these two triangles will be congruent by RHS. Now coming to exercise 3D 13D. See, question number 1. Here angle B and X is 90 degree. Angle B and X is 90 degree, and one of the side are equal. Then what more additional information required to make these two figure congruent? Tell me. To obey Sir, this AC equal to property. YZ. Sir, AC equal to YZ. Absolutely AC correct. इक्वल टू YZ You can होगा। say only hypotenuse side is missing. If these two sides will be equal, you can say that these two triangles are congruent. Correct. Now, see question number C. Okay, one more point is required. One, how these two triangles will be said congruent. Sir, BD AD equal equal to to AD, CD. common. AD is equal Sir, to AD equal to CD. Sir, AD equal to AD, common. Sir, BD is equal to Because CD. AD bisector of BC. Because AD bisector of side BC it's equal. See, the given part, what the question has given you, that is required to make it congruent. You need not to show any other thing. Okay, the question says that these two sides are equal and these two are the hypotenuse of triangle ADB and ADC. The second part is this is 90 degree. Okay, so R is given, H is given, and one side should also be given, and the other side is the common side, not the bisector. I know that this will be bisector, but using this property, AD is equal to AD, and this is the important required additional property information required. As you know that in isosceles triangle, the altitude is the bisector of the angle also, but you are not using these all information. Here AD is equal to AD. Who has said this sentence? Beta naam batao.
Ayush. Sir, Aman. Ayush, very good for AD is equal to AD, not BD No is sir, equal AD to equal CD. to AD नहीं sir, BD equal to CD. नहीं बेटा, ये वाला प्रॉपर्टी के लिए मैंने जानबूझ के लिखा था कि बच्चे थोड़ी गलती करें, और सही जवाब होना चाहिए था AD कॉमन साइड। एक बच्चा बोला था AD को कॉमन साइड, उसका नाम सर क्या है? अमन. कौन है जी अमन? नहीं अनम्यूट कर पा रहा, माइक्रोफोन में दिक्कत है। Yes, sir. तो अमन फैंटास्टिक, अमन Thank वेरी you, sir. गुड, अमन इट इज रियली वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट। Okay, now I am giving you a question. Do it in copy, and there will be a gift for you also. So, who will solve it first and will be required to open his camera and show the question solution to me? Sir, 3 number. Yes, just do it. Do it. I am waiting. Neat and clean work should be appreciated. There should be neat work. Even figure ABC altitude drawn to the vertices B and C. Do it properly. Sir, complete. वेरी गुड। तो मुझे आप जरा कैमरा ऑन करके दिखाइए, आई वांट टू सी। तो ये क्वेश्चन को समझा भी दीजिएगा सर. जरूर जरूर समझाएंगे। ओपन योर कैमरा एंड शो इट टू मी। Sir, हाँ बेटा, sir, I have sent it you on WhatsApp. कोई बात नहीं है बेटा, पहले मैं इनका क्वेश्चन देखूं। चलिए बेटा, क्वेश्चन दिखाइए मुझे। Sir, I also done. वेरी गुड प्रीति, बट बिफोर द वेरी फर्स्ट वन हु हैज सॉल्व द क्वेश्चन विल Sir, बी। I completed. हाँ, व्हाई? जस्ट शो Okay, इट sir. beta, this is question number 3 and then after question number 4. So it says that your work was not done right now, you have done it before, so your Yes, disqualification sir, I for have this studied. one. I completed. Sir, I seen my answer. Okay, of course, show it to me Priti. Okay, sir. Beta, where is the figure? Beta, I don't see the figure. If the figure is not there, beta, your answer also be disqualified. I want to see Okay, the sir. figure also beta. Sorry. Next. और कोई बच्चा? See, WhatsApp is not the way you are attempting. Here it is online, we are watching, we are showing everybody's question. Okay, so picking up from WhatsApp is not good beta Samir, but okay, I am taking your question, and this question has only, I cannot guess that your copy has only this question or it was done before. Oh no, not Sir, like I this. have done. नहीं बेटा, नीचे लिखा हुआ बता रहा है कि यू हैव डन इट बिफोर। मुझे कोई फेयर चीज नहीं दिख रहा है, मतलब दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ना।
ये दिख रहा है कि ये कुछ बना हुआ पहले से है। सर कट करना सर मैं दिखाऊं फिर से? मतलब सर हम सर हाँ बेटा, इसके लिए अब इतना वक्त मैं दे चुका हूँ कि नाउ द क्वेश्चन इज नॉट मींट फॉर द रिवॉर्ड, फॉर द सर्टिफिकेट, बट नो प्रॉब्लम। फिगर बना लिया। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, वेरी गुड, अच्छा किया, बट हियर आई एम टू आंसर दिस क्वेश्चन। सी, the question number 3 was there na? यस सर। चलिए क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं और कैसे बनाते हैं वो देखना जरूरी। इन ट्रायंगल एबीसी, पहले हमने ट्रायंगल एबीसी ले लिया, एंड देन वेट अ मिनट बेटा, हमने लिया ट्रायंगल एबीसी। एल्टीट्यूड आर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस बी एंड सी। अच्छा, बी से भी एल्टीट्यूड बना रहे हैं हम, मतलब 90 डिग्री, और सी से भी एल्टीट्यूड बना रहे हैं ऑन ए बी, बिल्कुल सही है। तो ये बन रहा है बी एल एंड सी एम, इसको एल दिया हमने नाम, इसको एम दिया हमने नाम। प्रूव करना है बी सी एम और सी बी आई, बी सी एल और बी सी एम। अच्छा, बी सी एल एंड बी सी एम, ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जहां पे ट्रायंगल में 90 डिग्री दिया हुआ है, एक कॉमन साइड दिया हुआ है, एंड एल्टीट्यूड्स आर डी एंड डी एफ आर इक्वल। डी तो है ही नहीं इसमें, इफ ए बी एन एस एल दैट बी एल सी एम इक्वल है। अच्छा, बी एल एंड सी एम आर इक्वल, बी एल एल्टीट्यूड इक्वल है, सी एम एल्टीट्यूड इक्वल है, ए बी और ए सी भी इक्वल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करते हैं, फिगर को अलग अलग बना लेते हैं हम। एक फिगर का नाम लेते हैं हम क्या, बी सी एम। इसमें ये राइट एंगल है, ये इक्वल एल्टीट्यूड है, और ये कॉमन बेस बी सी है। फिर दूसरा ट्रायंगल हम लेते हैं। सर बेस वो साइड वाला को कहते हैं या नीचे वाला को? क्या बेटा? सर वो तो हाइपोटेनियस ना हो गया बीसी। बिल्कुल बिल्कुल हाइपोटेनियस ही होगा, मैं बस वो साइड को इक्वल कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं, और दोनों में जो हाइपोटेनियस है वो कॉमन साइड है, तो ये इक्वल हो गया। और एक और साइड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो बी एल और बी एम है, जो एल्टीट्यूड है। सर तो जो दो साइड बगल में हो गया वो बेस हुआ कि लेंथ और बेस दोनों हुआ? देखिए, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को हम कहेंगे हाइपोटेनियस, और बाकी साइड को हम साइड कहेंगे, ठीक है। हालांकि बेस और Okay. परपेंडिकुलर आगे जब क्लास 9 में जाओगे तो हम डिफरेंस बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही है। तो आप देखो, अब दो ट्रायंगल ले लो, एक ट्रायंगल ले लो BCM या CMB, और दूसरा ट्रायंगल ले लो आप BCL। यहां पे अगर आपका नाम अनअरेंज्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, लेकिन आंसर के बाद नाम अरेंज होना चाहिए। तो यहां देखिए, सबसे पहले राइट एंगल में आप लिखिए कि एंगल M बराबर है एंगल L के, क्योंकि ये 90 है और ये गिवन है। सर इसमें CMB इक्वल टू BLC होगा। फिर BC इक्वल टू BC होगा, जो यहाँ पे हाइपोटेनियस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर उसके बाद BM इज इक्वल टू BL होगा, ये जो है गिवन साइड है। अब देखिए भाई, RHS, हम लोग को नाम देने वक्त थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर हम बुक में जो दिया हुआ नाम है उसको छोड़ के अपना नाम देना चाहते हैं तो, हालांकि हमें तो नाम बुक का ही देना है, पर आपको नाम एक बार फिर से प्रैक्टिस करा दूं। M हो गया राइट एंगल, वहां से साइड की तरफ इक्वल साइड की तरफ बढ़ते हैं, MCB। तो लिखते हैं पहले क्राइटेरिया बाय RHS, ट्रायंगल MCB is congruent to triangle LBC। LBC।
हो जाएगा। आपका नाम क्या है बेटा? सर शुभम प्रकाश। क्या 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 क्या? शुभम शुभम प्रकाश। शुभम। अच्छा, Yes, वेरी sir. गुड वेरी गुड शुभम। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने देखा बच्चों को बहुत दिक्कत आई, तो अब एक और क्वेश्चन दूंगा बच्चों को बनाने के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन भी मेरे मन का होगा, क्योंकि मैंने देखा कि जब रिवॉर्ड मिलने की बात आती है तो बच्चे थोड़ा बहुत अपने पिछले बनाए गए क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हमारा ये है, इसको हम देखते हैं कि बच्चे किस पार्ट से कॉन्ग्रेंट करते हैं। सर ये दोनों सेम है। अभी तो बताने दो, लिखने दो, क्योंकि सब बच्चे स्टार्ट कर देते हैं बनाना ना, तो मैं इतनी जल्दी तो सब कुछ नहीं बताने वाला हूँ। चलिए, आपके पास जो क्वेश्चन में पार्ट गिवन है, हमको कौन से दो ट्रायंगल को प्रूव करना है वो लिख देते हैं। इन ट्रायंगल एसीबी को कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल एडीबी से, और ये दोनों एंगल आपका इक्वल गिवन है। जल्दी से इसको प्रूव कीजिए और देखिए कौन सा प्रॉपर्टी आप यूज करते हैं। ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट कीजिए कॉपी में फिगर के साथ, जल्दी। समझ गए ना? जल्दी कीजिए। सर इसमें राइट एंगल कौन सा है? राइट एंगल इसमें नहीं है बेटा, इसमें मैं राइट एंगल वाला प्रॉपर्टी नहीं दिया हूं। इसमें मैं इसके पहले जो जो पढ़ चुके हो उसकी प्रॉपर्टी यूज किया हूं। ओके सर। देखना है मुझे कौन बच्चा इसमें बना रहा है। जो बच्चा यहाँ बना दिया वो तुरंत मुझे डन बोल करके अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकता है, क्योंकि उसको भी गिफ्ट मुझे देना है। और वो बच्चा यहाँ पे कॉपी में भी बना के व्हाट्सएप भी भेज सकता है। सर क्वेश्चन दिखाइए ना, अभी मैंने नहीं देखा ओ, था। बहुत बहुत लेट कर रहे हो, जल्दी करो, जल्दी इन दोनों को प्रूव करो। कोई भी प्रॉपर्टी अभी तक हमने जो पढ़ा है ना, वो पढ़ा है एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, RHS, ये तीन प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखा है। तो इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी यूज करना होगा। जल्दी करो, मौका बहुत कम है, जल्दी करो। मुझे लगता है कि कुछ बच्चे करके तैयार हो गए होंगे, उनको बगल में अपना सर्टिफिकेट भी दिख रहा होगा। और जिसको भी सर्टिफिकेट मिलता है ना, उनके पापा को बोलिएगा कि उस दिन वो जो है बिल्कुल उनको टॉफी वॉफी खिलाएं। कौन बच्चा है जो कंप्लीट किया, नाम बताओ। अमन ने कंप्लीट किया है। अमन का पहले मैं फोटो देखूंगा। सर कंप्लीटेड। अमन के बाद किसने बोला? नाम जल्दी से, डन डन अपना नाम सर लिखिए आयुष। यहाँ पे। अमन के बाद आयुष। आयुष, आयुष के बाद कंप्लीटेड सबमिट। रुक जाइए, पहले मैं अमन का देखता हूँ। अगर अमन में कुछ प्रॉब्लम होगा तभी मैं दूसरे को चांस दूंगा। देखता हूँ मैं। ट्रायंगल दिस 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 इक्वल, और क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड। अमन, अमन यस सर। क्या किए हो तुम? अमन यस सर। क्या था ये तुम्हारा? मुझे मजबूरन सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है। फैंटास्टिक अमन, वेरी गुड, सुपर। जिसको नहीं कहते कमाल, वो काम किया, बहुत सुंदर और बहुत पहले। अमन बधाई हो। क्योंकि देखो अब हम लोग दिखाएं। जरूर आप लोगों का देखता हूँ। हाँ, जो जो बच्चा दिखा सकता है, बिल्कुल अभी कैमरा पे ही मैं देखता हूँ बेटा आप लोगों का। आप लोग दिखाइए अपना अपना। सर मेरा भी हो गया। चलिए, समीर का मैं देख पा रहा हूँ, समीर का सही है। चलिए, समीर के बाद अब मैं देखना चाहता हूँ किसका। समीर हो गया तुम्हारा। और कौन है सर बच्चा? मेरा दिखाओ अपना, शुभम प्रकाश दिखाओ।
शुभम प्रकाश का देख रहा हूं मैं, इनका भी सही है। चलिए शुभम प्रकाश के बाद बताओ कौन है। आयुष राज का देख रहा हूं मैं, आयुष राज का भी बिल्कुल सही है। वेरी गुड आयुष राज। आयुष के बाद दिखाओ। शुभम सर कुमार मेरा सही है ना? बिल्कुल सही है। शुभम कुमार भी बिल्कुल सही जा रहे हैं, थोड़ा कैमरा ठीक से दिखाया करो। तो शुभम, आयुष, शुभम प्रकाश, प्रीति नहीं बनाई। चलिए मेरा सही। किसका है देख लो एक बार। रुक जाइए बेटा, आशी का देख रहा हूं मैं। आशी का भाई क्राइटेरिया लेकिन लिखना चाहिए। आशी बिना क्राइटेरिया लिखे नहीं होगा। चलिए कोमल भी सर। लिखी हैं। कोमल दिखाइए, यस। दिखाइए बेटा। ओह कमाल, वेरी गुड कोमल, सुपर। प्रीति तुम्हारा नहीं देख रहा हूँ बेटा। Yes. जल्दी जल्दी करो, सर दिखाए। जल्दी दिखाओ। मैं प्रीति ये तो चेहरा, हाँ अब सही है, अब सही है। गुड 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 गुड, क्राइटेरिया लिखा करो बेटा। वेरी गुड। चलिए तो अब आपका टाइम यहाँ होता है ओवर, और अब जो सर है, लिख दिए थे। हाँ सही है ओके सही सर। है। अब यहाँ पे आपको मिलता है, जो जो बच्चे हैं वो हैं। सर आयुष भी। हाँ बेटा अपना नाम याद कराना, मुझे याद भी है जो जो बच्चों ने किया है, ठीक है ना। तो आयुष, सर प्रीति, शुभम प्रकाश। समीर, हाँ, शुभम कुमार। सर शुभम सर शुभम, आपको प्रकाश। व्हाट्सएप पे भेजे थे सर। सत्यम सर, सत्यम कुमार। शुभम कुमार। शुभम हमने दिखाया प्रकाश। सत्यम का मैं नहीं देखा हूं। सर कोमल। हाँ कोमल का देखा हूं, आशी का भी देखा हूं, कोमल का भी देखा हूं, और कौन सर दिखाया हम बेटा। व्हाट्सएप पे आपको भेजे थे। सर मुझे पुनीत भी दिखाया था। पुनीत का नहीं देखा हूं बेटा, मैं कैमरा से पुनीत का सर नहीं देखा। पुनीत सर व्हाट्सएप पे भेजे थे सर, कैमरा हाँ, ठीक हाँ। नहीं है। अच्छा व्हाट्सएप पे भेजे हो, सर ठीक है। अमन भी। अमन का भी है। यस सर, सबसे पहले। वेरी गुड। तो आप लोगों को ये मिलता है सबसे बड़ा वाला गुड, ये है इन सारे बच्चों के लिए, क्योंकि ये सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट किया। थैंक यू सर। क्योंकि कोई बात थैंक यू नहीं है, सर। नेक्स्ट टाइम जो है इसको आप थैंक यू वेरी सर। गुड और सर्टिफिकेट में तब्दील करो, बट सेकंड रनर्स अप तो हो आप। और व्हाट्सएप पे बेटा आप भेजते हो ना, तो वो थोड़ा दिक्कत वाली चीज है, क्योंकि मैं अलाउ नहीं करना चाहता आपको, नहीं तो फिर आप पहले बाद में आता रहेगा। तो बेटा व्हाट्सएप को छोड़ो और आपके पास ऑनलाइन में मुझे दिखाओ, मुझे लगता है वो ज़्यादा अप्रूव है। ये आधा काट के मत भेजना, जब भी भेजना पूरा भेजना। बट इट इज़ गुड, रियली गुड, अच्छा है, अच्छा बनाया आपने। क्या नाम है आपका। 58432, ठीक है। पुनीत प्रधान। 58432 को भी गुड। 58432 जिसका लास्ट डिजिट है मोबाइल का, नाम नहीं बताया तो कैसे बताऊं मैं, बट दिस इज गुड। क्या नाम है सर बेटा आपका। पुनीत। पुनीत। सर पुनीत। चलिए पुनीत प्रधान। पुनीत, गुड। चलिए तो ये अच्छा था आपका। और एक क्वेश्चन और दूं, इसमें एक सर्टिफिकेट दे सकता हूं मैं। तैयार हैं आप लोग। रिकॉर्ड दे यस दीजिए। सर। चलिए अब देता हूं मैं, तैयारी में रहिए। समझ गया ना। सर अच्छे से नहीं दिख रहा है, नहीं दिख थोड़ा रहा है। डार्क पेन कीजिए सर।